हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 HM में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पे डिवोर्स लिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। Section 13 of Hindu Marriage Act 1955 provides for the grounds of divorce on which a Hindu couple married under Hindu law can file for divorce. So under section 13 totally there are 9 grounds on which divorce can be filed by any of the parties to the marriage, but after the Personal Laws Amendment Act 2019, which is in force from 1st of the March 2019, the ground leprosy, which is the fourth clause 1 subclause 4, has been omitted. So now leprosy, violent and incurable form of leprosy, is no more a ground for divorce under Hindu Marriage Act. So section 13 clause 1 says, Article 13 of the Hindu Marriage Act 1955 provides for the grounds of divorce which any party can avail for the dissolution of their marriage under Hindu law, and section 13 provides 9 grounds on which the divorce can be filed, but after the amendment by the Personal Laws Amendment Act 2019, the ground in subclause 4 of clause 1, violent and incurable form of leprosy, is omitted, and now there are only 8 grounds for both the parties to file for the dissolution of marriage. So clause 1 कहता है any marriage which is solemnized whether before or after the commencement of this act. तो शादी चाहे इस एक्ट के आने से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, अगर कोई भी पार्टी आइदर हस्बैंड और वाइफ अगर एक पिटीशन प्रेजेंट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, तो उन्हें इन ग्राउंड्स में से किसी एक पर पिटीशन प्रेजेंट करनी होगी. पहला ग्राउंड है अडल्ट्री का. अगर आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज कोई भी पार्टी वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, देन दैट इज मेड अप विद द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. Secondly, the second ground is cruelty. If after the solemnization of marriage the petitioner is treated with cruelty, then the party who is treated with the cruelty can file for the dissolution of marriage under this ground. Then thirdly, desertion. If the other party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years, so कम से कम 2 साल के लिए अगर petitioner को छोड़ दिया गया है, उसकी कोई केयर नहीं की जा रही, उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दैट केस 2 साल के जस्ट बाद petitioner petition फाइल कर सकता है to get their marriage dissolved under this ground. And then the next ground is conversion. If any party is ceased to be a Hindu by conversion to another religion, in that case also the other party can file for the divorce. Next ground is unsound mind. If any one party has been incurably of unsound mind, या फिर उन्हें कॉन्टीन्यूसली या इंटरमिटेंटली मेंटल डिसऑर्डर है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, वो भी इस तरीके का कि किसी पिटिशनर से रीज़नेबली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो उसके साथ रहे. देन एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा. तो एक्सप्लेनेशन बताता है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कि किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल means a party is behaving like a child, grown up man but behaving like a child. Then psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind, and includes schizophrenia also. And explanation B is talking about the psychopathic disorder, which means a persistent disorder or disability of mind
whether or not including the subnormality of intelligence, which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment. सो ये साइकोपैथिक डिसऑर्डर जो है ये एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, ये डिसेबिलिटी ऑफ माइंड है जिससे इंसान जो है वो एबनॉर्मली अग्रेसिव हो जाता है. सो नेक्स्ट ग्राउंड इज़ लेप्रोसी, which is omitted by the Personal Laws Amendment Act 2019. And so we shift to the next ground, and next ground is venereal diseases in a communicable form. If any party to marriage has been suffering from venereal diseases in a communicable form, then that can also be a ground with which other party can file for the divorce. The next ground is renunciation. If any party has renounced the world by entering into religious order, then other party can file for divorce. And last ground is has not been heard of or being alive for a period of 7 years or more by those person who have naturally have been heard of or had that party been alive. So in case उसे कहीं भी उसके होने का कहीं पता नहीं चल रहा है और 7 साल से किसी ने सुना नहीं है उसके बारे में कि वो कहाँ है, या जिन लोगों को नेचुरली पता होना चाहिए था कि वो कहाँ है उनको भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है या कहाँ है, तो हम उसे सिविल डेथ कंसीडर कर लेते हैं. तो अगर 7 साल से उसके ज़िंदा होने का किसी को पता नहीं है तो उस केस में भी अदर पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है. सो हेयर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिज़र्शन की, तो डिज़र्शन जो है वो एक इनकोइट ऑफेंस है एंड इट कंप्लीट व्हेन द डिज़र्टेड स्पाउस फाइल अ पिटीशन फॉर द मैट्रिमोनियल रिलीफ. तब तक वो जो है वो इनकम्प्लीट रहता है. सेकेंडली, in case of desertion, in the explanation if we see that in this subsection the expression desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage. तो यहाँ desertion जो है उसको explain किया गया है कि जो दूसरी पार्टी है उसने desert कर दिया है without any reasonable excuse. तो desertion is not like कि बस सुबह छोड़ के चला गया और शाम को वापस आ गए, तो ऐसा नहीं है. यहाँ डिज़र्शन जो है वो विदाउट रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए. तो इट मीन्स कि जिस पार्टी को डिज़र्ट किया गया है उसके पार्ट पर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो क्रुअलिटी के साथ ट्रीट कर रहा हो द पर्सन हु हैज़ डिज़र्टेड और बिहेविंग वेरी रूडली और नेग्लेक्टिंग दैट पार्टी. तो इन दैट केस डिज़र्शन विल बी जस्टिफाइड. तो डिज़र्शन जो है वो विदाउट रीज़नेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए एंड विदाउट द कंसेंट. दोनों की इस बारे में बात ना हुई हो कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ एंड द अदर पार्टीज अग्रीड, नॉट लाइक दैट. सो विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी. और इसमें विलफुल नेग्लेक्ट बाय द पिटिशनर ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू मैरिज इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. और उसकी जो भी ग्रामेटिकल वेरिएशंस हैं या कॉग्निटिव एक्सप्रेशंस हैं वो सब कंस्ट्रक्शन में accordingly include किए जाएंगे. So this is section 13 clause 1 which talks about the grounds of divorce and I would. So अब हम बात कर रहे हैं section 13 clause 1A which talks about breakdown theory. This is a phenomena like breakdown theory and it has been added by the amendment in 1964. It talks about either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground. तो जो ये हमने अभी 13 clause 1 में ग्राउंड्स पढ़े, इनसे अलग भी कोई भी पार्टी टू मैरिज अगर चाहे तो वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है. ये जो क्लॉज 1A में 2 ग्राउंड दिए गए हैं इनके अंडर. सो पहला ग्राउंड कहता है कि मान लीजिए अगर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन जो है वो पास हो गई है बाय द कोर्ट और उसे पास हुए 1 साल गुजर चुका है,
लेकिन उसके बाद भी कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ है पार्टीज़ के बीच उस केस में। और सब क्लॉज सेकंड कहता है अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है और अभी तक उनके बीच में कोई कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है, इट्स बिन 1 ईयर और अपवर्ड्स। तो बेसिकली ये यहाँ 2 ग्राउंड्स की बात करता है कि पहले में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ है, विच शोज़ दे हैव नो इंटेंशन ऑफ कोहैबिटिंग अगैन। और सेकेंडली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है, लेकिन अभी तक कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हुआ नहीं है, which also shows that restitution of conjugal rights between them is nearly impossible. So in that case they can file for divorce under clause 1A. now हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज 2 की। सेक्शन 13 क्लॉज 2 बताता है वाइफ को अवेलेबल उन ग्राउंड्स के बारे में जो कि वो 13(1) और 13(1)A से अलग भी फाइल कर सकती है डिवोर्स के लिए। 13(1) और 13(1)A में कोई भी पार्टी टू मैरिज जो है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है, लेकिन 13(2) में वाइफ के पास एडिशनल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज के लिए फ़ाइल कर सकती है। इसका क्लॉज 1 बात करता है इन केस ऑफ मैरिज सॉल्मनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो अगर इस एक्ट के आने से पहले जो है शादी हो चुकी है और हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली है इस एक्ट के आने से पहले, या फिर कोई और बीवी उसकी है इस एक्ट के आने से पहले जो कि ज़िंदा थी और उसने फिर पिटिशनर के साथ जो है शादी कर ली, तो व्हाट इट सेज इज कि जो हस्बैंड है उसने ऑलरेडी उसकी शादी इस एक्ट के आने से पहले हो चुकी थी और उसने पिटिशनर के साथ दोबारा शादी कर ली, तो इट इज़ अ केस ऑफ बाइगेमी। प्रोविज़ो प्रोवाइड करता है कि वाइफ जो है, जो उसकी फ़र्स्ट वाइफ है, जिस टाइम पिटिशनर पिटिशन डाल रही है उस टाइम उसकी फ़र्स्ट वाइफ जो है वो अलाइव होनी चाहिए। तो उस केस में बाइगेमी के ग्राउंड पर वाइफ जो है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है। देन सेकेंड सब क्लॉज बात करता है दैट द हस्बैंड हैज़ सिंस द सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी। सो दिस ग्राउंड इज़ फॉर द वाइफ ओनली। अगर हस्बैंड जो है वो गिल्टी प्रूव हो जाता है रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का, तो उस केस में वाइफ जो है वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकती है। बट हेयर द पॉइंट टू बी नोटिस इज़ if the husband is only guilty of attempt to such offenses, not proved guilty of such offenses, then it doesn't attract this ground of divorce. So अगर सिर्फ attempt किया गया है इन offenses को commit करने का, तो it doesn't attract this ground of divorce by the wife. देन क्लॉज 3 बात करता है कि अगर सेक्शन 18 हामा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर या फिर 125 CRPC के अंडर अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी और उसमें कोई डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है हस्बैंड के अगेंस्ट, जिसमें हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना था वाइफ को, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइफ जो है वो अलग रह रही थी, लेकिन जब से वो डिक्री और ऑर्डर पास हुआ है कोहैबिटेशन हुआ नहीं है पार्टीज़ के बीच में, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो मेंटेनेंस की डिक्री पास हो चुकी है, वाइफ अलग रह रही हो या साथ रह रही हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस डिक्री के पास होने के बाद 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, कोई कोहैबिटेशन अगर पार्टीज़ के बीच में नहीं हुआ है, तो वाइफ इस बेसिस पे भी डिवोर्स क्लेम कर सकती है। देन क्लॉज 4, द लास्ट क्लॉज, that her marriage whether consummated or not was solemnized before she attained the marriage of 15 years. So यहाँ बात कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज की। अगर वाइफ की शादी जो है मीन्स जो शादी है
वो अगर उसके 15 साल के होने से पहले ही हो गई थी, और as soon as she attained the age of 18 years, she repudiated the marriage. She has repudiated the marriage after attaining the age, but before attaining the age of 18 years. So 15 to 18 के बीच में अगर वो मैरिज को repudiate कर देती है तो उस बेसिस पे भी उनकी जो मैरिज है वो डिज़ोल्व हो जाएगी. So this is all about section 13, grounds of divorce under Hindu law, Hindu Marriage Act 1955. Do like the video, subscribe the channel and comment on it. Thanks for watching.